The great paradox. There is an interesting and important paradox in life that you need to be aware of. It is that if you are an intelligent person, you do everything possible to organize your life in such a way that you minimize and avoid adversity and disappointment. This is a sensible and rational thing to do. All intelligent people following the path of least resistance to achieve their goals do everything possible to minimize the number of difficulties and obstacles that they will face in their day-to-day activities. तो रूपाली जी बहुत अच्छा आपने रीड किया, इसको आप समझाना चाहेंगे? Yes, sir. There is an interesting and important paradox in the life that you need to be aware of. लाइफ में कौन से इसमें इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट देना चाहिए किस चीज को, ये शायद इसमें बताया है. If you are an intelligent person, you do everything possible to organize your life in such a way that you minimize, avoid adversity and disappointment. अगर आप इंटेलिजेंट पर्सन हो तो आपको आपकी लाइफ कैसे ऑर्गेनाइज करनी है और जो अपनी एडवर्सिटी को अवॉइड करना है या कम करना है डिसअपॉइंटमेंट को, ये यहाँ बताया गया है. दिस इज अ सेंसिबल एंड रैशनल थिंग टू डू. ये बहुत ही सेंसिबल और रैशनल थिंग बताई गई है. एंड इंटेलिजेंट पीपल फॉलोइंग द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस टू अचीव देयर गोल्स do everything possible to minimize the number of difficulties and obstacles that they will face in their day-to-day life. जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो गोल में जो भी रेजिस्टेंस आता है उसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और जो भी डिफिकल्टीज ऑब्स्टेकल्स आते हैं डे टू डे लाइफ में वो हमेशा मिनिमाइज करने में लगे रहते हैं. बिल्कुल, बहुत अच्छा रूपाली जी, बहुत अच्छा रीड किया. और इसका हम लोग एग्जांपल भी अगर देखें तो काफी सारे लोग हैं, जैसे हम फेसबुक के ओनर को जानते हैं कि वो है ना आज कौन सा शर्ट पहनूं इस टेंशन में ही नहीं रहना चाहते, इसलिए वो है ना क्या करते हैं कि डेली का टेंशन नहीं चाहिए, इसलिए एक जैसे ही उन्होंने खूब सारे कपड़े लेके रखे हुए है ना. तो बहुत अच्छा रूपाली जी, आपने बहुत अच्छा रीड किया. आगे बढ़ते हैं. डिसअपॉइंटमेंट इज इनएविटेबल, और इसके लिए हम लोग मेधा जी को बुलाते हैं. मेधा जी आप आइए और रीड कीजिएगा. Thank you, sir. वेलकम. Disappointment is inevitable, yet in spite of our... कुमार भैया, ये ऑलरेडी कल हम लोगों ने पढ़ चुका था ना? हमने पढ़ लिया था, फिर भी पढ़ लेते क्योंकि आज थोड़ा सा ये इसके खत्म हो जाएगा इसको, क्योंकि कल ये वाला टॉपिक मैं ही पढ़ी थी इसलिए मैं. हाँ मुझे पता है आप ये पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेते हैं, है ना. आज तो 2-4 पेज है, ये खत्म हो जाएगा चैप्टर. ठीक है, ठीक. ओके सर, कहाँ से पढ़ूं? हाँ यहीं से पढ़ लीजिएगा. डिसअपॉइंटमेंट इज इनएविटेबल. Yet in spite of our best efforts, disappointments and adversity are normal and natural, unavoidable parts of life. Benjamin Franklin said that the only things that are inevitable are death and taxes, but every bit of experience shows that disappointment is also inevitable. No matter how well you organize yourself and your activities, you will experience countless disappointments, setbacks, obstacles, and adversity over the course of your life. And the higher and more... सर थोड़ा नीचे कीजिए. हेलो. कुमार सर ऊपर कीजिए, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए. हाँ जी, हो गया. Challenging the goals that you set for yourself, the more disappointment and adversity you will experience. This is the paradox. It is impossible for us to evolve and grow and develop to our full potentials except to the degree to which we face adversity and learn from it. All of the great lessons of life come as the result of setback and temporary defeats which we have
done or almost to avoid. Adversity therefore comes unbidden in spite of our best efforts, and yet without it, we cannot grow into the kind of people who are capable of scaling the heights and achieving great goals. सर ये थोड़ा आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए ना. अच्छा, ये तो कल बताया था देवांशु जी ने. अच्छा. चलो अजय जी से आज सुन लेते हैं इसके बारे में. थैंक यू सर. डिसअपॉइंटमेंट मतलब आपको निराशा आनी आनी है, ये मतलब श्योर है. जैसे इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला है कि डेथ एक मरना और एक टैक्सेस इनविटेबल है, ये हमको देने ही पड़ेंगे. डेथ आनी आनी है, टैक्सेस हमको देने ही पड़ेंगे. ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि जैसे डिसअपॉइंटमेंट भी है, निराशा भी आपको आती रहेगी. मतलब कितना भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, कितना भी आप प्लान कर लें, कोई भी एक्टिविटी कर लें, कितना भी आपको एक्सपीरियंस हो, पर आपके रास्ते में वो पत्थर आने ही वाले हैं, रुकावटें आने ही वाले हैं, सेटबैक्स आने वाले हैं, मुश्किलें आने ही वाली हैं. एंड मतलब हायर जितनी ही बड़ी होंगी वही मुश्किलें उतनी ही आपको एक्सपीरियंस देके जाएंगी. सर ऊपर कीजिए. तो यही किया है, जितने मतलब चैलेंजिंग होंगे ना गोल्स आप अपने लिए करेंगे तो ये तो एक्सपीरियंस होने ही वाला है आपको. तो यही विरोधाभास है, मतलब एक उल्टे के एक दूसरे के उल्टा है. मतलब ये इम्पॉसिबल है. ग्रो योर फुल पोटेंशियल एक्सपेक्टेड विच फेस एडवर्सिटी. मतलब जितनी भी आप एडवर्सिटी ऑब्स्टेकल्स को पार करेंगे उतनी आपको एक्सपीरियंस होगा. ऑल द ग्रेट लेसन्स ऑफ द लाइफ कम्स फ्रॉम द रिजल्ट्स. तो जितने भी मतलब लोगों ने सीखा है, अपनी गलतियों से सीखा है, जितने भी सेटबैक्स ऑब्स्टेकल्स आए हैं, तो ये ना टेम्परेरी है. हम इसको डिफीट कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, और जो भी आनी है हमारे रास्ते में रुकावटें, उसको हमने अपनी मेहनत से, अपने कोशिशों से, मतलब वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वैसे ही आपको कोशिश करते रहना चाहिए. निराशा आती रहेगी, कैसे हम उस निराशा से उभरते हैं, कैसे हम ग्रो होते हैं, वो हमारी कैपेबिलिटीज है कि हाँ अपने कितने कैपेबल है उसको उस निराशा से बाहर आने के लिए, उस सेटबैक से बाहर आने के लिए, और उस प्रॉब्लम से जितना हम बाहर आएंगे उतना ही हम अचीव करते जाएंगे, उतना ही हम बड़ा करते जाएंगे अपनी लाइफ में. निराश होकर बैठ गए, हार के बैठ गए तो बैठ गए. उस निराशा से निकलना है और हमको बड़ा करना है. थैंक यू सर. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो जबरदस्त तालियां अजय जी के लिए. आगे बढ़ते हैं. एडवर्सिटी इज व्हाट टेस्ट्स अस, और इसको हम लोग सुखदेव जी से पढ़वा लेते हैं. सुखदेव जी, आप इसको रीड कीजिएगा सबके लिए. Thank you, sir. वेलकम. Throughout history, great thinkers have reflected on this paradox and have concluded that adversity is the test that you must pass on the path of accomplishing anything worthwhile. Herodotus, the Greek philosopher, said, "Adversity has the effect of drawing out strength and qualities of a man that would have lain dormant in its absence." The very best qualities of strength, courage, character, and persistence are brought out in you when you face your greatest challenges and you respond to them positively and constructively. Everyone faces difficult every step of the way. The difference between the high achiever and the low achiever is simply that the high achiever utilizes adversity and struggles for growth, and while the low achiever allows difficulty and adversity to overwhelm him or her and leave him or her disgusted and dejected. Adversity is what tests us, यानी कि adversity एक हमारा टेस्ट ही है. what tests us throughout history, जैसा कि पूरी हिस्ट्री में ग्रेट थिंकर्स हुए हैं, have reflected on the paradox, वो इसका विरोधाभास, have reflected on this paradox, वो इस पे विरोधाभास पर वो रिफ्लेक्ट करते हैं. have concluded that adversity is the best is the test that you must pass, यानी कि वो बताते हैं कि ये एक टेस्ट है. एडवर्सिटी ये जो आपकी लाइफ में आ रही है, ये एक टेस्ट है जो आपको डेफिनेटली पास करना है. अकम्प्लिश एनीथिंग वर्थवाइल, जो भी आप वर्थवाइल चीज है उसको अकम्प्लिश करना चाहते हो तो आपको ये एडवर्सिटी का जो टेस्ट है ये आपको क्लियर करना ही पड़ेगा. हेरोडोटस, द ग्रीक फिलोसफर, उसने कहा है, एडवर्सिटी हैज द
effect of driving out strength and qualities of a man that would have lain dormant in its absence. यानी जो एक ग्रीक फिलोसफर उसने कहा है जो एडवर्सिटी है इफेक्ट ऑफ ड्राइविंग आवर स्ट्रेंथ और क्वालिटी, ये हमारी स्ट्रेंथ और क्वालिटी को ड्रा करती है जो एडवर्सिटी है एक मैन में से, एक आदमी से, लैंड डोरमेंट इट इन इट्स एब्सेंस. The very best quality of strength, courage, character, and persistence are brought out in you when you face our greatest challenge. तो आप जब कुछ greatest challenge को face करते हैं तो आप में से ये qualities आती है, strength आती है, courage आता है और persistence यानी दृढ़ता आती है. You respond to them positively and constructively. अगर आप उसका जो response करते हैं सकारात्मक और constructively, everyone faces difficult every step of the way. प्रत्येक को ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, ईच और एवरीवन को. The difference between the high achiever and the low achiever is simply that the high achiever utilize adversity and struggle to grow. यानी कि जो हाई अचीवर और लो अचीवर उनमें डिफरेंस बताया गया कि उनके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है तो वो उनको अपनी स्ट्रेंथ और एडवर्सिटी को स्ट्रगल के लिए और उसको आगे ग्रो करने के लिए यूज करते हैं. जो कि लो अचीवर होते हैं वो इन डिफिकल्टी जो एडवर्सिटी है उनको ओवर वेलकम करते हैं और अपने लिए और लीव हिम और डिस्कस्ड एंड डिजेक्ट, और वो छोड़ देते हैं और डिस्कर्ज हो जाते हैं और डिजेक्ट हो जाते हैं. यही बताया गया जी इसमें. बहुत अच्छा सुखदेव जी, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बताई. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम जैसे एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे एक टेस्ट होता है ना, और 10th का जो टेस्ट होता है वो शायद सेकंड के टेस्ट से तो ज्यादा मुश्किल होता ही होगा. और 10th का टेस्ट देके 11th में पहुंचते हैं तो जितना मुश्किल टेस्ट होगा उतना ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं. तो उसी तरीके से जिंदगी में भी जो टेस्ट बड़ा होता है वो हमारे लिए इसलिए आता है कि वो हमें एक नए लेवल पे लेके जाना चाहता है. तो थैंक यू सुखदेव जी, बहुत अच्छा रीडिंग. और बाउंस बैक फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, इसके लिए हम लोग हर्षद जी को रिक्वेस्ट करेंगे. हर्षद जी आप रीड कीजिएगा. Bounce back from disappointment. The work by Abraham Zelelnik at Harvard proved that the way you respond to disappointment is usually an accurate predictor of how likely you are to achieve great success. If you respond to disappointment by learning the most from it, then by putting it behind you and pressing forward, you are very likely to accomplish great things in course of your life. Success comes one step beyond failure. ऊपर लेंगे क्या यही सब यहाँ शायद इतना समझा दीजिएगा. हाँ, हार्वर्ड में जो अब्राहम जेलेंस्की थे उन्होंने प्रूव किया है कि आप अपनी निराशा को कैसे मतलब डील करते हैं उसके हिसाब से आपको कैसे सक्सेस मिलता है वो डिपेंड रहता है. अगर आप उसको लर्निंग के हिसाब से मतलब वो डिसअपॉइंटमेंट मतलब जो निराशा मिली है उससे कुछ लर्निंग लेके आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा मतलब सक्सेस हासिल होगा. तो यही लाइफ का एक मतलब उसूल है ऐसा उन्होंने बताया. बाउंस बैक फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट. बहुत अच्छा हर्षद जी के लिए जबरदस्त तालियां. आगे बढ़ते हैं. थैंक यू. ग्रेट हर्षद जी. तो आगे बढ़ते हैं. सक्सेस कम्स वन स्टेप बियॉन्ड फेलियर, और देवांशु जी से इसको रीड कराते हैं. देवांशु जी आप इसको रीड कीजिएगा और एक्सप्लेन कीजिएगा सभी के लिए. हाँ. Success come one step beyond failure. This is another remarkable discovery where greatest success almost invariable come one step beyond. When everything inside of you says to quit, men and women throughout history have been amazed to find that their great breakthrough come about as a result of persisting in the face of all disappointment and all evidence to the contrary. This final act, persistence, which is often called the persistent test, seems to proceed
achievement of all kind. H. Rose Parrott, who started EDP Industries with $1,000 and who built into the fortune of almost $3 billion, is one of the most successful self-made entrepreneur in the American history. He said this: most people give up just when they are about to achieve success. They quit on the 1-yard line. They give up at the last. Actually बहुत छोटा font है, एक second. They give up the last minute of the game, 1 foot away from the winning touchdown. और पढ़ना है? नहीं, इतना समझा दीजिएगा देवांशु जी। सक्सेस कम वन स्टेप बियॉन्ड फेलियर, मतलब जब एक स्टेप बाकी रहता है ना, तब सक्सेस हमको मिलने वाली रहती है। तो उसमें हमको समझ जाना है कि हमें अभी क्विट नहीं करना है। इसका ओवरऑल जो मतलब सार है वो यही है। दिस इज अनदर रिमार्केबल डिस्कवरी, मतलब ये एक ये डिस्कवरी है। योर ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑलमोस्ट इनवेरिएबली कम वन स्टेप बियॉन्ड व्हेन एवरीथिंग इनसाइड ऑफ योर सेज टू क्विट। मतलब जब आपको लगता है ना कि बस अब नहीं होगा, लास्ट मोमेंट में अपन पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही इमीडिएट आपको सक्सेस मिलती है। तो हमें ना कभी भी एक स्टेप पहले कभी क्विट नहीं करना चाहिए। मैन एंड वुमेन थ्रू आउट हिस्ट्री हैव बीन अमेज्ड टू फाइंड दैट देयर ग्रेट ब्रेक थ्रू comes about as a result of persisting in the face of all disappointment and evidence to the contrary। मतलब हमेशा मतलब इसमें बताया है कि जो मैन और वुमेन है उनको जो डिसअपॉइंटमेंट होता है इतना, मतलब जब जो भी उनका जो ब्रेक मतलब जो थ्रू आउट उनकी जो जर्नी होती है उसमें उनको जो डिसअपॉइंटमेंट फील होता है और वो जो चीजें फेस करते हैं उसके बारे में बताया गया है। This final act of persistence, which is often called the persistent test, मतलब इसको एक persistent test बोला गया है। seems to proceed great achievement of all kind, मतलब ये एक great, मतलब ये ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये यहाँ पर बताया है कि क्या बोलते हैं, एच रोज पैरेट हु स्टार्टेड ईडीपी इंडस्ट्री, मतलब जो पैरेट है, रोज पैरेट, उसने ईडीपी इंडस्ट्री खोली थी $1,000 एंड हु बिल्ट इनटू अ फॉर्च्यून ऑफ ऑलमोस्ट $10, मतलब उसने इतना मतलब इतने $3 बिलियन उन्होंने वो किया इन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर इन द अमेरिकन हिस्ट्री। मतलब वो सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर थे अमेरिका, मतलब जो अमेरिका की हिस्ट्री में ही वाज द बेस्ट एंटरप्रेन्योर एंड ही सेड ही मोस्ट पीपल गिव अप जस्ट व्हेन दे आर अबाउट टू अचीव सक्सेस। मतलब उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द पीपल जब क्विट करते हैं, जब वो अबाउट टू रीच, मतलब जब वो अपनी सक्सेस की तरफ ही पहुंचने वाले ही रहते हैं, एक कदम पीछे ही रहते हैं और वो क्विट कर देते हैं। दे क्विट ऑन द 1-yard लाइन, मतलब जो एक लाइन पे आके वो जो द 1-yard लाइन जो उसने बोला है उस पे आके जो क्विट करते हैं, दे गिव अप एट द लास्ट मिनट ऑफ द गेम, मतलब जो गेम का जो लास्ट मिनट होता है उस पे वो क्विट कर देते हैं एंड 1 foot अवे फ्रॉम द विनिंग टचडाउन, सिर्फ एक स्टेप दूर ही रहते हैं वो अपनी विनिंग के लिए। मतलब ओवरऑल स्टोरी यही है कि कभी कभी हमको लगता है ना लास्ट मोमेंट पे आके हमें वो पेशेंस खत्म हो जाता है और हम क्विट कर देते हैं, बट कभी हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है एकदम कभी कभी लास्ट मोमेंट पे आके ही हमको वो सक्सेस का पता चलता है कि हमको सक्सेस मिल गई है। तो कभी भी जब तक चीजें कंप्लीट नहीं होती तब तक हमें क्विट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जबरदस्त तालियां देवांशु जी के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Thank you. और आगे हम लोग दीपक जी Can I को- add one line over here? Yeah, sure, सुनीता जी। Okay. So जैसे बताया कि success lies just one step ahead. अब इसको हम रोज के काम में अपने घर में जो हम काम करते हैं, like if you're kind of cleaning the drain, तो ड्रेन तब क्लीन होती है जब सारा हम कूड़ा एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, और वो
कितना भारी भरकम लगता है कि ओ इतना सारा है, लेकिन वंस यू पुश ऑल ऑफ दैट तब जाके क्लियर होता है। सो अगर हम इसको फिगरेटिवली भी अगर माइंड में भी इमेजिन करें कि 10 मुसीबतें आ गई हैं एंड इंसान क्या करता है उस समय उसको लगता है छोड़ देना चाहिए, बट जैसे ही अगर आप उसको विजुअलाइज करें दिस इज दैट सारा गार्बेज या कूड़ा जो भी अभी अब सारा इकट्ठा हुआ है, इसको मैंने अगर पुश कर दिया ना, then my line is clear, then the drain is clear, then a free flow of thoughts will happen. तो यही That's तो it. बोला है ना कि जैसे सारा गार्बेज इकट्ठा हो गया तो वहीं लोग जैम हो जाते हैं ना, उसको ही तो पुश Correct, करना है। correct, दिस इज द लास्ट स्टेप ओनली। correct. वहीं Yes, तो इंसान yes, yes. घबरा जाता है कि इतने सारे गार्बेज को मैं कैसे क्लियर Okay, करूं। okay, okay. I missed that part. Yes. यस थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू देवांशु जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक भाई कुछ कहना You चाहें? have to go one step ahead, one extra mile. Never know that putting one step ahead. अजय जी doesn't you. लगता है तो वो नेटवर्क एक स्टेप जो जैसे बोला हम सब लोग या नेटवर्क इशू है शायद। अजय जी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, शायद हमारे यहाँ या आपके यहाँ कहीं तो नेटवर्क इशू है। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको फिर करेंगे, समराइज करेंगे। तब तक दीपक जी से आगे हम लोग रीड करवाते हैं। दीपक जी आप रीड कीजिएगा और समझाइएगा। Yes, yes. Herodotus also wrote, some men give up their design when they are almost reached the goal, while others, on the contrary, obtain a victory by exerting at the last moment more vigorous efforts than ever before. तो हेरोडोटस लिखा है, उन्होंने लिखा है कि कुछ ऐसे आदमी है कि जो गिव अप कर देते हैं, उस गोल को रीच होने से पहले ही गिव अप कर देते हैं और लास्ट मोमेंट में ही गिव अप कर देते हैं। जैसे देवांशु जी दी ने बताया कि लास्ट मोमेंट तो अपने गोल की तरफ रीच होने वाले थे तभी वो गिव अप कर देते हैं। और you find this principle of persistence of keeping on in the life and work of countless great men and women. Florence Scovel Sheen wrote that every great work, every big accomplishment has been brought into manifestation through holding to the vision, and often just before the big achievement comes apparent failure and discouragement. एंड जो परसिस्टेंस का परसिस्टेंस यानी ऐसा बोला है कि लाइफ में जो परसिस्टेंस अपन रहेंगे, एक ही काम के जो गोल है अपना, कुछ भी हो जाए लेकिन अपन गोल को पाने के लिए अपन कंटिन्यूअस अपना प्रयत्न करेंगे। तो फ्लोरेंस कोवेल ने बताया, लिखा है कि जो भी ग्रेट हर एक ग्रेट वर्क के लिए बिग अकम्प्लिशमेंट लगता है और उसके लिए वो और जो भी अकम्प्लिशमेंट अपन बड़ा रखते हैं, जो सोच अपनी बड़ी रखती है, तो अपना वो गोल है, अपना विजन जो है उसको अपन मैनिफेस्ट कर देते हैं, यानी आपको गोल अपन पा लेते हैं। नेपोलियन हिल इन दिस क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच wrote, before success come in any man's life, he is sure to meet with much temporary defeat and perhaps some failure. When defeat overtakes a man, the easiest, the most logical thing to do is quit, and that is exactly what the majority of men and women do. नेपोलियन हिल ने भी अपने बुक में जो थिंक एंड ग्रो रिच उसमें लिखा है कि जब भी सक्सेस आने से पहले, लाइफ के जो भी आदमी है उसके सक्सेस आने से पहले, उससे पहले कि थोड़ा सा डिफीट उसके लाइफ में आता है, यानी वो हार मान लेता है और थोड़ा फेलियर भी आता है। नहीं, हार नहीं मानता इसमें। जैसे वो बोलता है कि मतलब कभी भी सक्सेस के पहले तो वो एक्सपीरियंस रहता ही है कि बिफोर सक्सेस आपको थोड़ा सा
डिसअपॉइंटमेंट होता है, फेलियर होता है, डिफीट होता है, ये सारी चीजों के बाद ही, ये सारी चीजों के बाद के एक्सपीरियंस के बाद ही हमको सक्सेस मिलती है। जब डिफीट को हम ओवरकम करते हैं उसके बाद ही सक्सेस एग्जिस्ट करती है। When defeat overtake a man, the easiest and most logical thing to do is to quit. जो भी एग्जैक्ट मेजॉरिटी ऑफ मेन जो वुमेन है वो डिफीट को ओवरटेक करते हैं, और वही क्या बताएं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ, सॉरी। तो दीपक जी यहाँ पे बताया कि जब डिफीट आती है ना, और किसी इंसान के पास में, या मैन या वुमेन नहीं है, इंसान का वहाँ पे किया है, लेकिन यहाँ पे तो जब डिफीट इंसान को आ जाती है तो सबसे इजी जो चीज होती है, या सबसे लॉजिकल जो लगता है ना, कि चलो यार छोड़ो, क्विट कर देते हैं, है ना। और यही अधिकतर लोग करते हैं दुनिया में। जब भी कुछ आता है तो क्विट करते हैं, है ना। क्विट करना सबसे आसान है, जाने दो, छोड़ दो। ठीक है। सो थैंक यू दीपक जी, बहुत अच्छा रीडिंग किया आपने, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे तो हम सिंपल दीदी को बुलाते हैं। सिंपल जी अगर आप हैं तो रीड कीजिएगा। आई थिंक सम नेटवर्क इशू। प्राजक्ता जी आप रीड करना चाहते हैं? वो भी डिस्कनेक्ट हो गए लगता है। और कौन है? चलिए हम लोग अजमत के पास पहुंचते हैं। अजमत रीड कीजिएगा। जी सर, थैंक यू सो मच। यहाँ हैरियर से, यहाँ से करना है ना सर? हैरियर बेचर, हाँ जी। हैरिट, Harriet Beecher Stowe, who wrote the Battle Hymn of the Republic, also wrote these words: "Never give up, then, for that is just the place and time that the tide will turn." What you do not see, what most important, never suspect of existing, is the silent but irresistible power which comes to you rescue when you fight on in the face of discouragement. Claude M. Bristol wrote, "It's the constant and determined effort that breaks down all resistance, sweeps away all obstacles." तो ये कुछ राइटर्स हैं जो, हाँ जी रीड बताइए। जी तो वो कुछ राइटर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि नेवर गिव अप। हेरिटल बेचलर्स स्टोव नाम है शायद राइटर का, राइट सर? एम आई राइट? सो उन्होंने बताया कि नेवर गिव अप देन, कभी मतलब छोड़ना नहीं है। फॉर दैट इज जस्ट द प्लेस एंड टाइम दैट द टाइड विल टर्न। सर प्लीज थोड़ा हेल्प करेंगे इसको एक्सप्लेन करने में, समझाने में? ग्रेट। तो अजमत के लिए पहले जबरदस्त तालियां। यहाँ पे बात की है कि नेवर गिव अप देन, फॉर दैट इज जस्ट अ प्लेस एंड टाइम दैट द टाइड विल टर्न। तो कभी भी हार मत मानो, क्योंकि वो केवल समय और वो जगह है जो कल चला जाएगा, है ना। So what you do not see, what most people never suspect of existing, is the silent but irresistible power which comes to your rescue when you fight on in face of discouragement. तो जब बहुत डिस्करेज होते तो कहीं से एक शक्ति आती है, उसके बारे में बात की। और बात की है क्लाउड एम ब्रिस्टॉल ने लिखा हुआ है, इट्स द कांस्टेंट एंड डिटरमाइंड एफर्ट दैट ब्रेक डाउन ऑल रेजिस्टेंस, स्वीप्स अवे ऑल द ऑब्स्टेकल। तो लगातार और डिटरमाइंड एफर्ट हम जब करते हैं तो हर एक रेजिस्टेंस को, है ना, वो खत्म कर देता है। जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको खत्म कर देता है। तो एक बार फिर से अजमत के लिए जबरदस्त तालियां। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यस प्राजक्ता जी आप रीड करना चाहेंगे? डिस्कनेक्ट हो गया लगता है वापस, कुछ इशू है नेटवर्क का।
मैं सुनीता जी को एक बहुत अच्छी पोयम इसके बाद में देने वाला हूं, इसलिए मैंने उनको रोक के रखा हुआ है। नरेश से सुनते हैं आगे। नरेश, नरेश जी। Okay, sir. Thank you, sir. Comes this week really put in this way. नरेश जी, Most- आप वीडियो बंद कर दो, शायद नेटवर्क इश्यू, आपका आवाज नहीं आ रहा है। Let's see. Okay, sir. Okay, it is okay, sir. नहीं, अभी Now, भी आवाज नहीं आ पा रहा है नरेश जी आपका। steps which come really put in this way. Is it okay, sir? नरेश जी, हम फिर से आपको मौका देंगे। चलिए, आज हमारे साथ अशोक जी हैं, तो अशोक जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे इसको रीड कीजिए, और रीड करने के पहले खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, आपका नेम, सिटी एंड प्रोफेशन। अशोक जी। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अशोक सिंह है और मैं ब्यावर राजस्थान से हूँ जी। एंड मेरा बिजनेस है सर, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ मैं। मेरा वॉइस आ रहा है सर? बिल्कुल, आपका वॉइस भी आ रहा है, आप दिखाई भी दे रहे हो सबको, है ना। सो वेलकम टू बुक रीडिंग कम्युनिटी। आप इसको रीड कीजिएगा और इसको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिएगा जी। तो जेम्स विथ कम रिटली पुट इट दिस वे, द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर इज persistence, the determination never to allow your energy to enthusiasm to be damped by the discouragement, the must inevitably, sorry क्या हो रहा है, inevitably come, yes, the power of hold on it in spite of everything to induce. This is the winner's quality. Percentage is the ability to pass the face again and again. Yes, again without giving up, to push on in the face of great difficulty. There is a poem by an anonymous author that I think everyone should read and memorize and recite to himself when tempted to quit or to stop trying. This poem is called Don't Quit. Yes, sir. अशोक जी, सर सॉरी, बहुत टाइम से पढ़ा नहीं है, बहुत टाइम से बिल्कुल वो है। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा रीड किया पहले दिन, है ना। हमें से अधिकतर लोग पहले बार इतना अच्छा नहीं कर पाए थे, तो आपने बहुत अच्छा किया। अशोक जी के लिए तालियां। थैंक यू सर। मोबाइल पे थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल होता है समझने में, तो जी बहुत छोटा होता है। हाँ जी, मुझे समझ में आया, है ना। सो यहाँ पे कुछ बात की थी कि डिटर्मिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है ना। और ये एक विनर्स का क्वालिटी होता है। जो विनर्स होते हैं ना, चैंपियंस होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है परसिस्टेंस, उनकी क्वालिटी होती है। ये कभी भी है ना हार को स्वीकार ही नहीं करते, चाहे कितनी भी बार आ जाए, ये उसके सामने खड़े हो जाते हैं। और एक उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वो क्विट नहीं करते। तो इस क्विट नहीं करने के बारे में एक बहुत अच्छी पोयम है, जिसके लिए हम लोग हमारे साथ बहुत ही अच्छी कविता लिखती हैं सुनीता जी। तो उन्हीं से हम इसको पढ़वाते हैं और इनका मतलब भी समझते हैं। तो सुनीता जी, ओवर टू यू। Thank you so much. I appreciate your sense of timing and choice.
Thank you so much for this opportunity. Don't quit when things go wrong, as they sometimes will. When the road you're trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile, but you have to sigh. When care is pressing you down a bit, rest if you must, but do not quit. Life is queer with its twists and turns, as every one of us sometimes learns. And many a failure turns about when he might have won had he stuck it out. Don't give up, though the pace seems slow, you may succeed with another blow. Success is failure turned up inside out, the silver tint of clouds of doubt. And you never can tell how close you are. It may be near when it seems so far. Stick to the fight when you are the hardest hit. It's when things seem worst that you must not quit. Very, very beautifully written. So I can explain if you want word line by line. आपकी मर्जी है, जैसा आप समझाना चाहें, है ना, सभी के लिए. Okay. When things go wrong, as sometimes they will, the roads you are trudging seems all uphill. So जब कुछ गलत होने लगता है, जैसा कि होगा भी, जिस रास्ते आप जा रहे हैं वो हमेशा थोड़ा सा मुश्किल लगेगा. जैसे ऊंची चढ़ाई चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, वैसा सा लगेगा. When the funds are low and the debts are high, you want to smile but you have to sigh. पैसे कम हैं और उधार बहुत ज्यादा है, लेकिन आप स्माइल तो करना चाहते हो, लेकिन स्माइल के बजाय आपके मुंह से आह निकल रही है उस टाइम. When the care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't quit. जब जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इतनी सारी आपके ऊपर बहुत सारा बोझ है, आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते. वो मत कभी करना. थोड़ा सा आराम कर लेना, ब्रेक ले लेना, लेकिन उसको छोड़ना मत. Where are we? Life is queer with its twists and turns, as every one of us sometimes learns. जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, और जहाँ पे जैसे हमने सीखा कि जब लगता है कि आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, वही शायद हमारा टर्निंग पॉइंट होता है. अगर हम उस फेलियर को या उस मुसीबत को अपनी शांति से, पेशेंस से उसको बेयर कर लें. And many a failure turns about when he might have won had he stuck out. और अक्सर ऐसा होता है, लाइफ में देखा गया है कि अगर हम रुकते नहीं तो शायद हम सक्सीड कर जाते. अक्सर जब हम क्विट करके कुछ लूज कर देते हैं, बाद में हम सोचते हैं अगर मैं बस वो एक चीज और क्रॉस कर लेता तो बेटर ही होता. Don't give up, though the pace seems slow, you may succeed with another blow. जो स्पीड है, विन करने की जो स्पीड है या सक्सेस पाने की जो स्पीड है, वो ऐसे लगेगा कि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, इतना समय लग रहा है, इतना समय लग रहा है, लेकिन शायद एक और धक्का लगने पे आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे. सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट. सक्सेस इनफैक्ट फेलियर जो है उसके अंदर जो है वो छुपा हुआ है, जो कि हमें नजर नहीं आता. और ये जो शक का जो बादल है, ये भी अपने आप से क्लियर हो जाएगा या उड़ जाएगा. एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार. कभी समझ नहीं आ सकता कि हम कितने नजदीक हैं. ऐसा लगता है कि हम बहुत दूर हैं, लेकिन वो सच नहीं है.
So stick to the fight when your heart is hit. It's when the things seem worst that you must not quit. जब लगे अब तो अति हो गई है, so हमारे पास जब अति हो जाती है तो दो choices होते हैं कि अब हम छोड़ दें, जैसा कुमार जी ने बोला कि वो बहुत आसान है छोड़ देना, लेकिन वही एक समय है when things will turn around and you will find success. So do not quit. Quitting is not an option. This is what you have to bear in mind. That's it. थैंक यू सुनीता जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वंडरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को समराइज करते हैं और इसके लिए हम लोग अजय जी को बुलाते हैं। अजय जी, आप इसको रीड करके समराइज कीजिएगा। कुमार जी, इसकी आप वो लेके अपने ग्रुप में जरूर डालिएगा इस पोएम का। Sure. Persist until you succeed. Identify the biggest challenge or problem facing you today on the way to achieving your biggest goal. Imagine that it has been sent to test your resolve and desire. Decide that you will never give up. जैसे अभी पॉइंट पढ़ी है, never give up. आप अपना जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको फेस कीजिए आज, और जो आपका सबसे बड़ा गोल है उसको आप अपना अचीव कीजिए। Imagine that it has been sent to test. मतलब आप ऐसा इमेजिन कीजिए ये आपका टेस्ट है, आपके जो गोल्स है उसको पाने के लिए, आपके जो ड्रीम्स है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो डिसाइड करिए कि आप कभी भी यू विल नेवर एवर गिव अप। सेकंड पॉइंट, think back over your life and identify the occasion where your determination to persist was the key to your success. Remind yourself of those experiences whenever you face difficulties or discouragement of any kind. मतलब आप देखिए, थिंक कीजिए पिछले कि आपने कब पिछले आप परसिस्ट रहे, आपने डिटर्मिनेशन के साथ काम किया, आपने सक्सेस पाया। देखिए वो जो आपके एक्सपीरियंस है जो आपको काम आए, अपने फेलियर्स आए आपकी लाइफ में, आप ओवरकम हुए, आप पीछे जाके देखिए जो भी डिफिकल्टीज आई हैं, आपके डिस्करेजमेंट आए, उन एक्सपीरियंस से सीखिए और आप परसिस्ट रहिए, लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। Resolve in advance, and as long as you intensely desire your goal, you will never give up until you achieve it. मतलब आप एडवांस रहिए, पहले से तैयार रहिए कि मतलब जितने आप पहले से तैयार रहेंगे अपने गोल को लेके, अपने इंटेंस रहेंगे अपने डिजायर को लेके, अपने गोल को लेके, यू विल नेवर गिव अप अंटिल यू अचीव इट। आप तब तक नहीं हार मानेंगे जब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाते, पाल ही नहीं लेते अपने गोल को। Number fourth point is look into every problem, difficulty, obstacle or setback for the seed of an equal and greater benefit of opportunity. You will always find something that can help you. इसमें ये बताया गया कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सेटबैक, कोई भी डिफिकल्टी है, उसको खाली आप डिफिकल्टी के नजरिए से मत देखिए, उसको एक मतलब बराबर उसी तरीके से देखिए कि एक सीड है, इसके कितने और क्या बेनिफिट है और इसका क्या मतलब मौका हो सकता है मेरे को। तो यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसा पाएंगे जो आपको मदद करने वाला है। मतलब जस्ट क्रिबिंग दैट दिस इज प्रॉब्लम, आई हैव दिस प्रॉब्लम, दैट इज अ नॉट सॉल्यूशन। यू हैव टू सी द अनदर पार्ट ऑफ द कॉइन दैट यस विद एनी every difficulty there is an opportunity. Number fifth is in every situation resolves to be solution oriented and action oriented. Think always in the terms of things you can do right now to solve your problems, to achieve your goals, and then get started. Never give up. इसमें ये मतलब वही बताया, जब भी आपके ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्रॉब्लम है तो आप उसको एक्शन टेकर बनिए, एक्शन लीजिए, सोल्यूशन देखिए क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल सोल्यूशन। मतलब ऑलवेज थिंक इन द टर्म्स ऑफ थिंग, मतलब जो चीज आप कर सकते हैं उसके बारे में ही सोचिए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इस अपने गोल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देन दोबारा शुरू कीजिए और कभी मत हार मानिए, नेवर गिव अप। थैंक यू अजय जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। तो आज के इस रीडिंग को हम यहाँ पे रोकते हैं। अगर किसी के कुछ सवाल है तो उसके पहले कल हम जो रीड करने वाले हैं उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। कल हम जो हमने पूरे 21 चैप्टर्स पढ़े हैं उसका हम कंक्लूजन पे बात करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक मिस किया होगा, अगर आपके कांटेक्ट में है जो इस बुक को पढ़ रहे थे, तो सबको जरूर कल बुलाइए, कल हम इसको समराइज करेंगे, ठीक है।